Good evening, all of you. So you are doing United Nations. So let's continue the topic. So we were discussing about the principal organs of the United Nations. As I told you, there are total 6 official organs of UNO, and these organs are General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice, Secretariat, and Trusteeship Council. Okay, so now when we talk about the most important organ of the international organization, and that is Security Council. सबसे ज़्यादा strong and सबसे ज़्यादा we can say कि जिसके पास सबसे ज़्यादा power है, so that is Security Council. ठीक है, Security Council में ही वो आपके जो veto वाला जो concept है, veto power जो है वो भी Security Council के ही जो 5 important members है, 5 permanent members उनके पास है. So let's discuss about these organs one by one कि क्या functioning है इनकी. चलिए नीति, read this slide. Yes, ma'am. Security Council. First, 5 permanent members: China, France, Russia, United Kingdom, and United States. 10 rotating members responsible for the maintenance of international peace and security. ठीक है, देखो आपके ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, अब जब से यूएनओ बना है तब से लेकर के अब तक के यही 5 परमानेंट मेंबर्स. ओके, कौन कौन से हैं नोट डाउन कर लीजिए. कई बार ये आपके स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं कि कितने मेंबर्स है, यू हैव टू गो फॉर 5 ऑप्शन, या फिर आपसे पूछ लेंगे कौन है या कौन नहीं है. तो ये आपके 5 लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस. 10 रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं जो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं. इंडिया इज प्रेजेंटली अ रोटेटिंग मेंबर, और वी कैन से अ टेम्पररी मेंबर ऑफ यूएनओ राइट नाउ. ठीक है, इंडिया अभी आपका क्या है, वेदांत स्विच ऑन द कैमरा जादव, अभी इंडिया आपका क्या है, टेम्पररी मेंबर है अभी एट प्रेजेंट, और इसका मेन वर्क क्या है, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है. सो सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन. ठीक है, सबसे ज्यादा मेन फंक्शनिंग की सारी यही है, सारे कंट्रोल ही ये इसके पास में ही है. ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. चलिए नील, प्लीज रीड दिस स्लाइड. Yes, ma'am. The Security Council has the responsibility to first to investigate any dispute or situation which might lead to international friction. Second, to recommend method of adjusting such disputes of term of settlements. To formulate plans for establishment of the system to regulate armaments. To determine the determine the existence of the threat to the peace or act of aggression, and to recommend what action should be taken. Fourth, to call on the members to apply economic sections and other measures not involving the use of force to prevent or stop aggression. Fifth, to take military actions against an aggressor. Sixth, to recommend the admission of the new members. Seventh, to exercise the trusteeship functions of the United Nations in a strategic areas. Last, to recommend to the General Assembly the appointment of the Secretary General, and together with the Assembly to elect the judge of the International Court of Justice. बच्चा, why you people are not preparing your notes? You have to prepare your notes. Okay, so सबसे पहले तो अगर सपोज कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है जिस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, तो वो कौन करेगा, वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल ही करेगी. कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट अराइज होता है तो उससे रिगार्डिंग आपकी कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी काउंसिल करनी है. अब एडजस्टमेंट के मेथड्स क्या हो सकते हैं. सपोज आज नीति कंट्री ने नील कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, या नीति कंट्री नील कंट्री को थ्रेट कर रही है, डरा रही है. सो अब ऐसे में नीति कंट्री के अगेंस्ट क्या मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, या इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया रिगार्डिंग बाउंड्री. ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के नीति और नील कंट्री के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हुए हैं, तो अब उसको एडजस्ट करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं. बैठा करके दोनों की बात करवा ले, दोनों को डरा धमका ले, इकोनॉमिक सेक्शन अप्लाई कर लें, जो मेथड्स सिक्योरिटी काउंसिल यूज कर सकता है, पहले वो सारे मेथड्स यूज करता है. सबसे पहले टेबल टॉक होती है, डेस्क टॉक जिसे कहते हैं. ठीक है, प्लान्स एग्जीक्यूट करना आर्मामेंट से रिलेटेड. ये नहीं कि हर किसी ने आज सबके पास वेपन्स है, तो ये आपकी एनटीटी और ये जो ट्रीटीज है रिगार्डिंग आपके ये न्यूक्लियर यूज से
रिलेटेड जो आपकी ट्रीटीज है उनको रेगुलेट करना। इंडिया ने अभी तक ऐसी किसी ट्रीटी पे सिग्नेचर नहीं करा है, ठीक है, बिकॉज इन ट्रीटीज का मेन फोकस क्या था कि जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है दैट इज फाइन, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमारे पास है, हम परमाणु बम रख रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज को वो स्टॉप करना चाहते थे, जो न्यू डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको स्टॉप करना चाहते थे। तो दिस वाज द रीजन कि इंडिया ने ऐसी किसी ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया है। तो एनीहाउ ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं आर्मामेंट को, शस्त्रीकरण को, कि कैसे कम से कम वेपन्स बनेंगे ही नहीं तो यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना इस चीज को रेगुलेट किया जाए। देन अब कुछ थ्रेट हो रहा है, इंटरनेशनल थ्रेट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। इकोनॉमिक सेक्शन अप्लाई किए जाते हैं। अभी मोदी जी ने अभी लास्ट ईयर हमारी आर्मी के और चाइना की आर्मी के बीच में कुछ मुठभेड़ हो गई थी, तो उसके बाद मोदी जी ने इकोनॉमिक सेक्शन अप्लाई किए थे। आपके वो जो जितने भी चाइनीज एप्स थे लाइक टिकटॉक है या वीचैट है वो सारे बैंड हुए थे, ठीक है। काफी टाइम तक चाइना का माल जो है, जो प्रोडक्ट है, वो भी इंडियन मार्केट्स में नहीं आ रहा था। तो हमारे जो ये इकोनॉमिक सेक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया इज बेसिकली अ लार्ज मार्केट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया क्या है, एक बहुत ही लार्ज मार्केट है सारी कंट्रीज के लिए। दिस इज द रीजन कि अगर इंडिया इकोनॉमिक सेक्शन अप्लाई करता है तो ये बहुत नुकसान की चीज हो सकती है। नेक्स्ट, मिलिट्री एक्शन क्या लिए जाने चाहिए। अगर कोई कंट्री नहीं ही मान रही है तो उसके अगेंस्ट कुछ मिलिट्री एक्शन भी लिए जा सकते हैं, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। न्यू मेंबर्स कौन कौन से मेंबर को रिकमेंड किया जाना चाहिए, जो रोटेटिंग मेंबर्स है, आपके टेम्पररी मेंबर्स हैं, सॉरी जो मेंबर्स होता है, जैसे 193 मेंबर्स हैं, तो उनको रिकमेंडेशन का जो वर्क है वो भी यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या है, रिकमेंडेशन होती है फॉर द सेक्रेटरी जनरल, जो मेन पोस्ट है, इनकी हेड है, जो उसकी पोस्टिंग रिगार्डिंग रिकमेंडेशन करती है। उसके अलावा ये इलेक्ट करते हैं जजेस को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं ये उनको इलेक्ट करते हैं। यस, आई विल शेयर दिस पीपीटी, डोंट वरी। एक्चुअली मेंबर्स जो भी होते हैं बच्चा, उनका मेन वर्क क्या होता है कि कोई भी सपोज डिस्प्यूट आता है तो उसके ऊपर वोटिंग का उनका वर्क होता है, ठीक है, कि कितने इसके फेवर में है और कितने इसके अगेंस्ट है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो मेनली जो मेंबर्स का वर्क होता है वो इसी रिगार्डिंग होता है। या सपोज कोई और इशू अराइज हुआ है तो उसमें उनके क्या व्यूज है, क्या सजेशंस वो दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल की एक अलग से फंक्शनिंग होती है, वो इस तरह से वर्क करता है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल असेंबली। अब ये जो आपकी जनरल असेंबली है ना, ये लाइक पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको पार्लियामेंट कराया था, नेशनल लेवल पे हमने जो पार्लियामेंट करा था, ये इंटरनेशनल लेवल की पार्लियामेंट है, ये समझ लीजिए आप। ओके, नाउ लेट्स गिव ऑप्शन टू शौर्य। शौर्य, प्लीज रीड दिस राइट, जनरल असेंबली। क्या कर क्या रहे हैं शौर्य? इज ही न्यू स्टूडेंट और हु इज ही? नो रिस्पॉन्स। चलिए आकाश, आप रीड करिए। General Assembly. Point first, it occupies the central position as the chief deliberative, policy making and representative organ of the United Nations, a forum for multilateral discussion on international issues between 192 members of the United Nations. Okay, इसको 193 कर दूंगी मैं अभी, 193 कर लीजिएगा इसको। कंटिन्यू। It plays a significant role in the process of settling, and the codification of the international law. The Assembly meets in regular session individually from September each year and thereafter as required. ठीक है। अब जो ये आपका जनरल असेंबली एज आई टोल्ड यू, पार्लियामेंट की तरह काम करती है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग इसकी सेंट्रल पोजीशन है, जैसे पार्लियामेंट की आपकी सेंट्रल पोजीशन होती है और नेशनल लेवल, इन दैट सेम वे इसकी पार्लियामेंट की जितनी ही वैल्यू है या उतना ही वर्क है, आप ये समझ लीजिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे या हम बात करें, अगर यूएनओ के रेफरेंस में हम बात करते हैं तो इसकी सेंट्रल पोजीशन है फैसिलिटी, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है ये। मल्टीलैटरल डिस्कशन यहाँ पे होता है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ कैसे बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से प्रोविजन होने चाहिए, वो भी सारा डिस्कशन यहीं पे होता है। जैसे आपके पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होता है, वैसे यहाँ से क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बिल्स पास होते हैं। रेगुलर सेशन से सितंबर टू दिसंबर होते हैं हर साल, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या कर लेते हैं, सेशन उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। नो मेंबर्स आर 193 मीटिंग राइट नाउ, ठीक है। 2 कंट्रीज आर नॉट मेंबर यट। चलिए वो सर्च करके लाइएगा आप कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर नहीं है। ओके, एट प्रेजेंट इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 193। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर
organ of the UNO and that is Economic and Social Council. चलिए आदित्य रीड करेंगे इसको. Okay, ma'am. Economics and Social Council, ECOSOC, coordinates economic, social, and related works of the 14 UN specialized agencies, functional commissions, and 5 regional commissions. ECOSOC consults with academies, business sectors representatives, and more than 2,100 registered non-governmental organization. It is responsible for promoting higher standard of living, full employment, and economics and social progress, identifying social solutions to international economics, social and health problems, facilitating international cultural and educational cooperation, and encouraging universal respect for human rights and fundamental freedoms. ठीक है भाई, देखिए आपका नेम से आपको पता चला इसका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज पे इसका फोकस होगा. इकोनॉमिक एंड सोशल से रिलेटेड जितने भी वर्क है उन सबको कौन रेगुलेट करता है, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रेगुलेट करती है. एकेडमिक हो सकता है इसमें, जैसे सपोज 2 कंट्रीज मिलकर के कोई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर रही है, बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड कुछ इनके फंक्शंस हो सकता है, या फिर सपोज दे आर फोकसिंग ऑन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड तो रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पे, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस के ऊपर ये लोग टारगेट कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एंड ऑल्सो ह्यूमन राइट्स पे भी फोकस कर रहे हैं. तो ह्यूमन राइट्स जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं कि जिंदगी जीने के लिए आपके पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए. ठीक है, सो हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको हम ह्यूमन राइट्स जैसे ही होते हैं वो हम ये काउंट कर सकते हैं. तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि सपोज फंडामेंटल राइट्स आपके सिटीजन को दिए गए हैं. अब यहाँ पे एक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ ह्यूमन राइट्स का, कि सपोज आज एक कंट्री है, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज ने ऐसा किया था. रोहिंग्या मुसलमान वाला अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक 2017 में ये बहुत इशू अराइज हुआ था. उस टाइम पे उनको उनकी खुद की ही कंट्री से निकाल दिया गया था. वो वहाँ के लोकलाइज थे, माइनॉरिटी थी, और उनको उनकी ही कंट्री के लोगों ने वहाँ पे आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया था और उनको वहां से निकाल दिया गया था. तो अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ठीक है. तो किन किन कंट्रीज ने उनको यहाँ पे अपने यहाँ पे रखा है, या उनके लिए जो रेफ्यूजी कैंप सेट किए गए हैं. तो ये सारे ह्यूमन राइट्स है कि जो भी इंसान है, ठीक है, आज सपोज मैं बात करती हूँ, आदित्य आज आपको आपकी ही कंट्री पहचानने से इनकार कर देती है. कौन आदित्य, हम नहीं जानते इसको, निकालो इसको यहाँ से. ठीक है, इंडिया आपको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देता है. तो फिर आपके साथ क्या होगा, ठीक है, बहुत से इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे. अगर आपकी खुद की कंट्री ही आपको नहीं रखना चाह रही तो दूसरी कंट्रीज आपको क्यों रखेंगी. ठीक है, तो ऐसे बहुत से कई बार कलेक्टिव इश्यूज अराइज होते हैं जिनके लिए ह्यूमन राइट्स जो है वो भी वर्क करते हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल एक्सेट्रा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से फोरम्स हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं. चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका हर साल आ सकता है वो ये आ सकता है कि पहली चीज तो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हैग में है, नीदरलैंड में है. नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. एक चीज यहाँ पे टोटल कितने जजेस होते हैं, तो टोटल 15 जजेस होते हैं. कितने ईयर्स के लिए, फॉर 9 ईयर्स. यहाँ पे आपके टोटल 15 जजेस हैं 9 ईयर्स के लिए. ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी क्या है, इंग्लिश एंड फ्रेंच. चलिए, नाउ लेट्स टॉक टू वंश राठी. वंश, प्लीज रीड दिस स्लाइड. Yes, ma'am. International Court of Justice. The International Court of Justice, ICJ, is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946. The seats of the court is at the Peace Palace in the Hague, Netherlands. The court's role is to settle in accordance with international law, legal disputes submitted to it by states, and to give advisory opinions on legal questions referred to it by the authorized United Nations organ and specialized agencies. The court is composed of 15 judges who are elected for terms of office of 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council. Its official languages are English and French. Okay, very good. ठीक है सर, देखो यहाँ पे this is basically
जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है, यूएन के जुडिशियल ऑर्गन से डेफिनेटली लॉ से रिलेटेड जो चीजें मैटर्स होती है उसके ऊपर ही फोकस करता है। इसका सीट कहाँ पे है? पीस पैलेस इन हैग, नीदरलैंड। ओके, पीस पैलेस है यहाँ पे एक जगह हैग में, नीदरलैंड में, वहां पे इसकी सीट है। टोटल 15 जजेस फॉर 9 ईयर्स। और इंग्लिश एंड फ्रेंच क्या है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और करंटली कौन है इसके जस्टिस, मेन जज जो है इनके कौन है अभी? वंश, जैसे अपने यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड पे। यस मैम, करंटली मैम जॉन डोनोग्यू। ठीक है, और इंडिया के जो हमारे कौन है चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस किसले? यस आकाश? एनवी रामना। एनवी रामन, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे। मेन इसकी सीट के ऊपर फोकस करेगा। नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल, और बेसिकली दिस ऑर्गन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है? सपोज कोई कंट्री है, आज उसने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर लाइक अपना कब्जा किया हुआ है, ओके, और वो उस कंट्री की तरफ से एज अ ट्रस्टी वर्क कर रहा है। तो उस टाइम पे जो लास्ट आपकी कंट्री जो आजाद हुई थी दैट वाज पलाऊ, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1994 को ये कर रही थी, दिस वाज द लास्ट कंट्री। तो दिस इज द रीजन कि ये ऑर्गन जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है, फिलहाल ये ऑर्गन आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए, इसको रीडिंग करने की नीड नहीं है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इतने एग्जाम में। सो लेट्स मूव, ठीक है। तो ये आपका यूएनओ से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे मेन जो है यूएनओ को हेडक्वार्टर मैंने आपको